Varsha Tandil, Assistant Professor from the Department of Accountancy and Program Officer of NSS Unit B26 of Prahlad Rai Dalmia Alliance College of Commerce and Economics. I welcome you all in today's session on Cardiac Safety Creative Development Competition. We have a prominent guest speaker with us for today's session, Dr. Rita Savla ma'am. So first of all, let me introduce you all with ma'am. Dr. Rita Savla ma'am is a medical doctor. She helped the patient to live a medicine-free life. She is also a counselor and dietitian to work on preventive medicine to save a life of preventable death and disability. She started Radhi Disaster and Education Foundation to reduce the aftermath of disaster, health emergencies, and accident through advocacy, planning, and training. She began promoting the concept of right help, early help, and the importance of life saving first aid skill. Radhi is a pioneer in bringing change in the country's golden hour trauma management field. Radhis give way to ambulance and green corridor concept has served lakhs of lives. Radhi is the only organization in India that has done extensive research on why India has maximum post-accident fatalities. Dr. Rita has trained more than 40,000 people in CPR first aid, disaster management, fire safety. She also speaks on various topics like how to live a medicine free life, stress management, time management, food as a medicine, etc. and so on. Dr. Rita Ma'am is a winner of various awards like Mumbai Hero. Times Now has featured Dr. Rita for her work in post accident management. So, on behalf of NSS Unit B26 of Prahlad Rai Dalmia Alliance College of Commerce and Economics, I welcome you, ma'am, in our today's session. Now, I request Dr. Rita, ma'am, our guest speaker, to address the audience. Over to you, ma'am. Thank you, Varsha ma'am, and good evening, friends. Apology from my end because I'm not able to start the video because there is no light. I'm connected with the mobile and laptop. Not able to start. Varsha ma'am, if you could start the presentation. Yes, ma'am. Yeah. So, friends, the whole idea of today's meeting is, to let you understand what is a cardiac safety is all about. And plus, first, the thank you that you have been, going to be a savior because your creative, whatever you will be developing, will help people to understand what are the myths and facts about the cardiac safety. And that will save more life. That will also reduce the suffering of the brain damage, which subsequently you will understand what exactly it means. You're able to share, ma'am? Yeah, ma'am. So, I'm doing the same. Varsha ma'am is sharing the presentation. So, all of you have seen the how the heart functions. Have you ever seen that? So, let's have the interactive session. You can unmute yourself and talk. Ma'am, is PPT visible? PPT is look no. We can see the PPT, but yeah, now it is fine. Yes, yes, Yeah. yeah. So please unmute. So if we have an interactive session, then we'll enjoy the session. Otherwise, it will become only one side talking. So please raise your hand. Next, ma'am. Next slide, please. Next slide. So you have seen the beating heart. Beating heart means we all are alive. If our heart stops functioning, it means we are no more. We are dead. So have you ever heard for somebody saying that that somebody, ma'am, please stop. Somebody died because of sudden cardiac arrest or heart attack. You have heard about anybody nearby on the newspaper, on WhatsApp, or your parents or your friends talking about it? Dilip, Jia, Harsh, Neha, Ria, Roshni. Yes, ma'am. Yeah. And you must be wondering, and most of this are between the age group of 25 to 55, or they were little Yeah. more elder. Huh? Harsh, you want to say something? Please let's have an interactive session so we can enjoy the whole session. So
So if you see somebody die of sudden heart attack in front of you, what you will do? Ma'am, next slide, please. So what you will do when if you see somebody, what you will do? Do you know what to do when if you see somebody suddenly died in front of you? It can be any stranger because you are innocent, you are kind-hearted people, and you would always like to save their life. Am I right? Raise your hand. Yes, ma'am. So what you will do when you see somebody dead in front of you, suddenly collapse, and then that person is not there? What you will do? You have some idea? Somebody suddenly has a heart attack and suddenly collapse. Do you have any idea? Next slide, please, ma'am. Varsha ma'am, next slide, please. So have you seen the video related to CPR on your WhatsApp, on social media? Have you seen? I hope it's present. They are not just be attentive. Today's our conversation will help you to develop the required creatives, which will be the savior for many people. So I repeating the question. Did you have you watched any video related to CPR on your WhatsApp or on the social media? No. Huh? Yeah, yeah, Jia. No, ma'am. You have not seen. So anybody has seen? Plus raise your hand. There is a option over the raise hand. Oh, so nobody has seen. Okay, Roshni has seen it. Very good. What about Dilip, Biswas, Harsh, Jia, Shweta, Neha? Okay, Shweta has seen. Very good. What about Biswas, Dilip, Harsh? Somit, Veer? What about you guys? Have seen that anybody video related to that? Okay, if you have not seen, then if any person dies, ma'am, next slide, please. Because of sudden cardiac arrest, where before 2 minutes, next slide, please. Before 2 minutes, a person was alive, talking, and after 2 minutes, suddenly there is a chest pain. And before even the person realizes, or near people who are standing around that person, or they will, before they realize anything, that person collapses and his heart is not functioning. So, the medically, when we say that anybody's heart stops functioning, then we will declare that person as a dead person. So this is next slide, please, ma'am. The CPR is a one technique which helps to save the life. That is, CPR means cardiopulmonary resuscitation. So you in this slide, so it could be, the anybody who is around when I talk about, it could be your colleague, it could be your friend, it could be a stranger, it could be a family member. So in this situation, a cardiopulmonary resuscitation helps in saving the life. And one has only few minutes, important minutes. So when I'm talking at this timer, which I have kept it only to say that, okay, by the time you explain me, but Sweta and uh, who has raised another hand? Roshni, could you explain what exactly that video you had seen? Ma'am, you can, if you start that tick button, it will, Varsha ma'am. So Sweta, can you share what you had seen exactly in CPR video? Ma'am, not go to the YouTube, just there is a small button over there. So Sweta and Roshni, can you explain what you had seen in that video? Good evening, ma'am. Very good evening. Ma'am, I've seen the video in news channel. That Okay. they are some if someone got heart attack, they're pushing their chest, Okay. so the uh, uh, the blood cells can work.
Okay. Yes. This I've seen this. Okay. So, Ma'am, it should be done in 1 minute, na? CPR uh, should be done in 1 minute. no, CPR should be done within 4 minutes. It should start within Okay. 4 minutes. Okay. Ma'am. So you have a time of starting within 4 minutes. Ma'am, we can go back to the slide. Yeah. So these 4 minutes are very important and crucial. Next slide, please. It's just a 4 minutes. Why 4 minutes? Because when heart stop functioning, entire heart is all the heart function is supply the blood to the entire body, and blood carries all the required nutrition. What we call about oxygen, vitamins, minerals, everything carries with us. So most important thing is oxygen. When somebody does not get an oxygen, certain part of the cells, then time slowly they will start dying it. So first organ which die after not receiving the blood and oxygen supply is a brain. And we all know, like, if brain doesn't function, it means we have that part of the brain which is damaged because loss of blood supply and oxygen, that part will stop. So when we are talking, when you're hearing, when you're doing moving your hand, it all happens because your brain is functioning well. You have maybe seen some paralytic patient where they are not able to function certain part of the body, they're not able to walk properly, they're not able to talk, they're not able to swallow, where those part of the brain are not functioning. In similar pattern, brain starts slowly dying. It doesn't die immediately and entirely completely together. It starts dying part by part. So after 4 minutes, a small part of brain will die. After 6 minutes, another small part will die. After 7 minutes, another small part will die. And over a period of 14 to 15 minutes, entire brain will die. If anybody receives the blood supply after 4 minutes and between that 14 minutes, that it will work. But that small part of the brain which has already dead will not revive. So person will be staying alive. Person will be staying alive, but will not have functioning of that part which is already dead. For example, you have already know about Raju Srivastava, a great comedian. Have you heard about him? You must have seen his videos, Yes, YouTube ma'am. video. Yeah. And last year he died. He was doing exercise in the gym, and the gym he had a cardiac arrest, and then he died. But he did not died on the same day when he had an heart attack, a cardiac arrest. He died after almost 40 days. What had happened in between? Somebody had given him the CPR, but because of the CPR was with the wrong technique and wrong delayed CPR, he had a brain damage. So he was on the ventilator for almost 40 days, and after that he died. So we want to prevent this type of a Raju Srivastava, which is happening around us. So let's understand what are the facts about the CPR and cardiac arrest. And then slowly I will run out with the questions. So you'll understand what exactly it is, all the facts. So ma'am, please next slide. So why we are talking about this topic? We are talking because it is the first cause of death. So every per minute, 2 people die of cardiac arrest. We all were concerned about the COVID, am I right? But in Yes, COVID, ma'am. how many people died because in the COVID from March 2020 to August 2023. That is almost in span of 30 months. Only 5 lakh people died. But because of the cardiac arrest, more than 12 lakh people die. And more than that, uh, almost 12 lakh people become permanent, have suffered with the brain damage. And
more than 30 lakh people suffer with a complication of a cardiac arrest, that is a neuro disability or incorrect CPR. So this is where it is important. And out of a 12 lakh people dying, hardly 10 to 12 people survive a normal life because they have received the correct CPR. So what is CPR? Is a cardiopulmonary resuscitation with the proper type of a chest compression in the particular technique with particular place, not anywhere on the chest. As you know, Roshni said or Sweta said, like, you know, something is to be done on the chest, some compression, pushing Yes, of the ma'am. chest. But where to push, how to push, at what speed, in what way? Can this, just seeing then watching a video, one can understand? No. And we don't want to save No, the ma'am. person with do we want to save the person with disability, or we want to save the person who lives the normal and healthy life? So what is what we would like to do? I always see you guys, you know, very interactive. Today, why you are shy? Avni, Biswas, Dilip, Harsh, Jia. Please, everybody talk. At least raise your hand. So our entire Yes, objective for this students, if you training are in the program. meeting, if you are listening, ma'am, please say few things. हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आता है बोलो, हाँ, बट ऐसे हाँ. चुपचाप मत बैठो. Yes, ma'am. If it is English is a problem, should we speak in Hindi? Raise hand. हिंदी में बात करो. ओके, रिया हिंदी. ओके, ठीक है, हिंदी में. कार्डियक अरेस्ट की वजह से हर मिनट में 2 लोगों की मृत्यु होती है. हर मिनट में 2 लोगों की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, गलत तरीके से सीपीआर करने की वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन होता है. हर मिनट में 3 लोगों को ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि गलत और समय के अनुसार सीपीआर ना करने, डिलेड सीपीआर करने की वजह से. और अगर किसी का कॉम्प्लिकेशंस हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तो उसको इट मीन्स कि उसको लंबा समय तक अस्पताल में रहना पड़ेगा. 70% केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो है वो पुरुषों में ज्यादा आ रहे हैं, ऑफिस अवर्स में ज्यादा आ रहे हैं. एज ग्रुप इज 26 to 55, 80% केसेस की. सो ये पूरी सिचुएशन में अगर हमें किसी की लाइफ बचानी है तो हमें राइट टेक्निक, समय का सदुपयोग. और वो राइट टेक्निक कैसे आएगी? यूट्यूब वीडियो देख के आएगी. यूट्यूब वीडियो देख के आएगी या ऑनलाइन क्लासेस से आएगी? अगर आज मैं आपको सिखाऊंगी भी अगर सीपीआर करना, तो क्या आपको समझ में आएगा? थ्योरी समझ में आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आएगा ना. Yes, और ma'am. लाइफ बचाने की आपको थ्योरी नहीं, वहां पे पढ़ना नहीं है, एक्चुअली परफॉर्म करना है. तो ये बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है कि हम जो चीजें प्रमोट कर रहे हैं. और ये हम क्यों बात करना शुरू किए? हम कुछ रोड एक्सीडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन क्या है एक्सीडेंट के, रोड एक्सीडेंट्स के बाद. उस समय हम जब अस्पताल में जा रहे थे और स्पेसिफिकली आईसीयू वार्ड में जा रहे थे, तो हमने देखा कि काफी पेशेंट ब्रेन डैमेज से एडमिट हुए थे. जब हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और उन लोगों से बातें की, उनके रिलेटिव्स लोगों के साथ बातें की, तब पता चला कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था. लोगों ने गलत तरीके से या समय के अनुसार डिलेड सीपीआर देने की वजह से वो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे और उनकी हालत गंभीर थी. ना मर रहे थे, लेकिन हालत गंभीर, मेडिकल बिल ज्यादा, लंबा समय से वो लोग हॉस्पिटल में थे. मैं डॉक्टर हूं तो मैं बता सकती हूँ कि अगर राइट टेक्निक से सीपीआर किया तो वो पेशेंट 10-15 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा. आईसीयू में तो 3 से 4 दिन ही रहेगा, या शायद 1 हफ्ता रहेगा, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं रहेगा. तो आप सोचिए कि अगर वो पेशेंट लंबे समय तक रह रहा है और फिर रिकवरी नहीं हो रहा है, जैसे राजू श्रीवास्तव, इतना उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए, इतनी उसको ट्रीटमेंट दी गई, फिर भी वो हमारे बीच नहीं रहे है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम. वर्षा मैम नेक्स्ट स्लाइड है. तो
पहले तो समझे कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। आजकल हम लोग सब लोग स्ट्रेस में जीते हैं, हर एक को किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस, और स्ट्रेस का लेवल हमारी बॉडी स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर सकते है, लेकिन उससे कई गुना अगर ज्यादा बढ़ गया तो वो स्ट्रेस, हर स्ट्रेस नहीं लेकिन कंटिन्यूअस और ज्यादा मात्रा में अगर बढ़ गया, जैसे कि सिंपल बात एग्जांपल बताओगे, अगर सब्जी में नमक डाला तो एक मात्रा में डालोगे तो सब्जी अच्छी लगेगी, बट उससे कई गुना ज्यादा कर लोगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा अगर हम लोग ने मात्रा में नमक डाल दिया, तो क्या हम वो सब्जी खा पाएंगे? ऐसा ही स्ट्रेस का भी है, सर्टेन नमक जितनी मात्रा में है तो ठीक है, लेकिन उससे अगर ज्यादा बढ़ गया 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड उसकी वजह से कोई ना कोई सिम्टम्स थ्रो करेगा, और सबसे पहला सिम्टम है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। लाइफस्टाइल, हम सबको पता है कि गलत तरीके की लाइफस्टाइल, जंक फूड, इरेगुलर हैबिट्स, इरेगुलर स्लीप, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को डैमेज करती है और वो एक कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा ऑयली फैटी फूड, एक्सरसाइज ना करना, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी होता है, डायबिटीज भी होता है, ओबेसिटी भी होती है। तो ये सारे बोलते हैं ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कारण है। जेनेटिक डिसऑर्डर, कई फैमिली में वर्षों से ये चलता है कि उन लोगों को वहां पे हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट से काफी लोगों की वहां पे स्टोरी रहती है कि इस फैमिली में काफी लोग कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है। फिर कोविड, जिन लोगों को कोविड हुआ था उन लोगों में भी कार्डियक अरेस्ट के चांसेस थोड़े ज्यादा है कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल। कोविड वैक्सीनेशन में भी ऐसा ही है कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से थोड़े परसेंटेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट के प्री बॉन्डिंग, अगर स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होगा, ऑलरेडी होगा, तो जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है या कोविड हुआ था में हार्ट अटैक से और कार्डियक अरेस्ट से डेथ होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम 360 डिग्री का एक सोल्यूशन प्रिवेंटेबल हेल्थ के ऊपर बात करें, जिससे डेथ कम हो जाए, लाइफ बचा सके, डिसेबिलिटी कम हो, हम लोग जल्दी हॉस्पिटल से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी हॉस्पिटल से घर जाए। इसकी वजह से अगर पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल से घर गया तो दूसरे पेशेंट के लिए बेड खाली होगा। अगर लंबे समय तक अपना कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में रहता है तो उसकी वजह से पूरी फैमिली में एक मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस हो जाता है। जितने दिन ज्यादा हॉस्पिटल में रहे उतने दिन ज्यादा हॉस्पिटल का बिल होगा। एम आई राइट? Yes, हेलो, ma'am. या Yes, ma'am. कई बार तो अगर पैसे नहीं Yes, है, ma'am. हाँ, घर के हालात खराब है, पैसे नहीं है, तो हम भीख में रिलेटिव देने को तैयार नहीं होते एक सर्टेन टाइम के बाद, तो फिर उसकी वजह से कोई चोरी करने लगता है या गलत काम करने लगता है, और ओवरऑल वो अपने देश की जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। तो हम लोगों में क्या सोच है क्या नहीं है, उसके हम लोगों ने इंटरव्यूज लिए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट क्या सेम है? हार्ट अटैक में पेशेंट जिंदा रहते हैं, उनको गोल्डन आवर में मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट के ऑलरेडी हार्ट फंक्शन करना बंद हो गया है और उसके पास 4 मिनट का समय है मदद लेने के लिए, जिसका मदद का नाम है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। उसमें पर्टिकुलर चेस्ट की पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर प्रोसेस से हम लोगों को चेस्ट कंप्रेशन करनी रहती है, और वो सही तरीके से अगर चेस्ट कंप्रेशन किया तो पर्सन नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि सीपीआर से फायदे क्या होते हैं अगर हमने किसी को सीपीआर किया है तो। Yes, miss. ऐसे डॉक्टर होने की वजह से मुझे कई बार रात को लोग कॉल करते हैं, और उसमें एक दिन है ना, रात को 2 बजे कॉल आया, मुझे वो दिन भी बहुत अच्छे से याद है, गुरुवार की रात थी। रात को 2 बजे मुझे कॉल आया, लड़के की आवाज से, थैंक यू मैडम। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि ये थैंक यू, रात को 2 बजे मुझे कौन सा बंदा थैंक यू बोल रहा है। और मैं सोच में पड़ गई कि ये थैंक यू किसके लिए बोल रहा है। तो मैंने बोला थैंक यू किस बात के लिए, कौन हो तुम, रात को 2 बजे क्या कर रहे हो? तो तुरंत बोला आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी मैडम। ऐसे हाँ बताओ किस बात का थैंक यू बोलना है रात को 2 बजे मेरी नींद खराब करके।
मेरे कान तो तैयार होते हैं कि सुनने के लिए कोई सामने वाला कोई पेशेंट आएगा और अपनी कोई तकलीफ बोलेगा और मुझे उसको सुलटानी है, कुछ उसको सजेशन देना ताकि उसकी पीड़ा और तकलीफ कम हो जाए। बट उसकी जगह पे थैंक यू तो कभी सोचा भी नहीं था। और जब वो बंदा वो स्टूडेंट्स के साथ, वो भी एक्चुअली स्टूडेंट था, उसको मैंने 3 साल पहले कॉलेज में, बेडेकर कॉलेज थाने में, मैंने उसको इन लोगों की बैच थी सीपीआर सिखाया था। और 3 साल के बाद उसके फादर को हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसे सीपीआर देके अपने फादर की लाइफ सीपीआर करने की वजह से बच गए हैं। एंड सोचो कि वो बंदा अगर उसको सीपीआर नहीं आता है, गलत टेक्निक के सीपीआर, तो एक स्टोरी क्या होती है, और उसको सही तरीके से सीपीआर आता था तो एक स्टोरी पूरी अलग थी। उसकी खुशी थी। और उसी जगह पे अगर वो सीपीआर नहीं सिखा रहता या उसका कोई उसको गलत तरीके से सीपीआर दिया होता, उसने राइट टेक्निक नहीं सीखी होती, ऑनलाइन सीखा होता या यूट्यूब से सीखा होता, तो कोई अलग ही इम्पैक्ट होता। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस में उसने सोचा भी, मैम को रात को किसी को 2 बजे फोन नहीं करना चाहिए, बट वो ना खुशी होती है कि मेरा बाप बच गया, मेरे बाप अभी सेफ है। तो उस खुशी में उसने रात को 2 बजे मुझे बाद में अल्टीमेटली कॉल कर दिया। तो दिस इज द होल इम्पैक्ट कि एक की किसी की लाइफ में सही तरीके से किसके साथ कब होगा पता नहीं। उसने 3 साल पहले मुझसे सीखा था। सोचिए कि आप लोगों के जैसे स्टूडेंट एज में 18-19 की साल में सीखा था और 22 की साल में उसको ये चीज की हेल्प हो गई। तो कब कौन सा ज्ञान है, कौन कब से कब काम आए, वो हम बोल नहीं सकते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे कार्डियक अरेस्ट आया। तो जनरली कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों में लोगों को डिफरेंशिएट पता नहीं होता है, क्या दोनों अलग चीजें हैं। तो बोलते हैं अरे हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो खांसी करने को शुरू करनी चाहिए। तो अरे भाई, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है उसका हार्ट डेड हो गया है। क्या कोई डेड बॉडी खांसी कर सकता है? नो मैम। हाँ। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जिंजर सुंघा दो, ये चप्पल सुंघा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या डेड बॉडी कोई स्मेल ले सकती है? नो। ऐसे ही वजह से लोग बोलते नहीं नहीं, अभी सीपीआर सीखने की जरूरत क्या है, हम तो खांसी करने करवा लेंगे, या तो हम उनको चप्पल सुंघा देंगे या अदरक सुंघा देंगे, ये जो भी कर लेंगे। ऐसा ना सीखने का एक उन लोगों को ज्ञान नहीं है। तो हमें आपके क्रिएटिव से एक अलग तरीके का ज्ञान डेवलप करना है ताकि लोगों को समझ में आए कि डेड बॉडी कोई खांसती नहीं है, डेड बॉडी कोई स्मेल नहीं एक्सेप्ट करती। ओनली थिंग हमारे पास एक ही रास्ता है, वो सीपीआर। और वो भी राइट टेक्निक से पहले सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखा है तो उन क्रूशियल 4 मिनट में करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सेव द लाइफ ऑफ कार्डियक अरेस्ट पेशेंट? 100%। मेरे फादर जिंदा है सीपीआर की वजह से। मैडम प्रीवियस स्लाइड प्लीज। मेरे फादर जिंदा है सीपीआर की वजह से। अब वो पेशेंट, वो स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। वो उसके फादर जिंदा है, रोहन था उसका नाम। तो रोहन के फादर जिंदा है। मैंने ऐसे 8 से 9 लोगों के ऊपर सीपीआर किया है। फिर मेरी एक हैंडीकैप स्कूल की टीचर थी, जिनको हम लोगों ने हैंडीकैप स्कूल में हम लोगों ने सीपीआर ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था। उनके काका ससुर जिंदा है। तो देयर आर मेनी एग्जांपल। एक पुलिस, जिनके साथ हम लोग, मैंने काफी पुलिस वालों को सीपीआर में ट्रेनिंग की है। तो एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने बहन के हस्बैंड को बचाया है। तो इस तरह से लिस्ट काफी लंबी है जिन लोगों ने सीखने के बाद, उनको 1 महीना 2 महीने में एक ज्ञान काम नहीं आया था, काफी समय के बाद वो राइट टेक्निक जो सिखाई थी उसी की वजह से समय के बाद भी वो लोग सही तरीके से सीपीआर करके उनके नियर एंड डियर लोगों को वो बचा सके थे। मैंने मेरे फादर पे की है, काफी पेशेंटों पे भी किया है। इसकी वजह से है ना, ये पता है, एक बार मैंने अंधेरी स्टेशन पे किसी एक बिल्डर की लाइफ बचाई थी। तो इसी तरह से हैंड ऑन प्रैक्टिस होने की वजह से डॉक्टर लोग बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत और किस तरह से करना चाहिए। इज द सीपीआर फर्स्ट एड? हाँ बिल्कुल फर्स्ट एड है, क्योंकि डॉक्टर आने से पहले जो बाजू में खड़ा रहता है, बाजू में है, वो जो कोई भी ट्रीटमेंट करे उसको फर्स्ट एड बोल सकते हैं। और सीपीआर इज ऑल्सो एक फर्स्ट एड का पार्ट है। सीपीआर ट्रेनिंग इज फॉर डॉक्टर, हॉस्पिटल, नॉट फॉर द कॉमन मैन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीआर ट्रेनिंग इज, ऑफ कोर्स डॉक्टर तो सीखते ही है, बट सीपीआर ट्रेनिंग तो 4 मिनट में कोई डॉक्टर आ सकता है क्या? 4 मिनट में क्या हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं क्या? नो मैम। बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए सीपीआर बिफोर द डॉक्टर। अगर हमारे नेबर में डॉक्टर है, क्या वो 4 मिनट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम सीपीआर के ट्रेनिंग इस तरह से प्लान करें कि हर एक जगह पे
कहीं ना कहीं 1 या 2 बंदे लोगों को CPR आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन वॉचिंग यूट्यूब वीडियो विल हेल्प इन डूइंग द CPR। एब्सोल्युटली इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप हैंड ऑन प्रैक्टिस एडवांस मैनीक्विन पे नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट किसी इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने जाए तो हमारे हाथ में या तो उस पर्सन की डेथ होगी या तो उसके पर्सन के कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमारा मेडिकल का बिल उन लोगों का बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग कैन बी सफिशिएंट। ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी आज भी मैं आप लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ। अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हो या एनरोलमेंट प्रोग्राम बोल सकते हो, क्योंकि हमें क्रिएटिव में क्या डेवलप होना चाहिए उससे पहले आप लोगों को ये सारी चीजों को पता होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, थियोरी सीख सकते हो, बट प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं सीख सकते। प्रैक्टिकल के लिए तो हैंड ऑन प्रैक्टिस होना ही जरूरी है। अगर CPR अगर आप लोगों को बोला आपके पास मैनीक्विन नहीं रहेंगे, मैनीक्विन नहीं है तो किसी जिंदे इंसान पे अगर आप करने गए CPR तो बंदा ऑलरेडी मर जाएगा, जिंदा इंसान को मारने की प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए CPR ऑनलाइन नहीं सीख सकते। एनीबडी कैन टीच CPR? नो। जब हमने हॉस्पिटल में जिन लोगों को ब्रेन डैमेज हुआ था या कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से, पोस्ट CPR कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो लोग एडमिट हुए थे, तब हम लोगों ने उनसे बातें की कि ये CPR सिखाने वाला कौन था। तो उन लोगों ने मोस्ट ऑफ द आंसर था कि अगर किसी ने ऑफलाइन भी सीखा था तो वो मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने प्रॉपर ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, खुद ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो कैसे वो सिखा सकते हैं। उसके एरर क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, छोटी 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 बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। उसकी वजह से CPR ओनली डॉक्टर सिखाए, वो भी हर डॉक्टर नहीं, जो क्वालिफाइड ट्रेनर है वो डॉक्टर सिखाए तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वर्षा मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलेड CPR एंड व्हाई 4 मिनट्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि डिलेड CPR से ब्रेन डैमेज हो सकता है, और ब्रेन डैमेज हो गया तो पर्सन विल हैव नॉट लीव द नॉर्मल लाइफ। तो ये क्वेश्चन हमने, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्रेन डैमेज, वो मैंने आपको बताया कि वो पर्सन जो जगह पे जो ब्रेन सेल डेथ हो गए हैं वो पार्ट फंक्शन नहीं करेगा, तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, न्यूरो डिसेबिलिटी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, कंप्लीटली बेडरिडन हो सकता है। व्हाट हैपन इफ CPR इज डन इनकरेक्टली? अगेन ब्रेन डैमेज हो जाएगा, रिब फ्रैक्चर हो गया, स्टर्नम फ्रैक्चर हो गया। ये एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग इन नवी मुंबई। तो वो बता रहा था कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, अब एक मेल पेशेंट था, उसकी वाइफ लेके आई थी। ऐसे क्या हुआ था? बोलते वो लेडी ने CPR किया था। ऐसे हाँ, फिर क्या हुआ? अरे यार, CPR करते वक्त में उसने पूरा का पूरा हार्ट ही रप्चर कर दिया। ऐसे क्या, हार्ट मतलब हार्ट फट गया था? ऐसे हाँ, हार्ट फट गया था। कैसे? उसको टेक्निक ही नहीं पता था। क्या हुआ था स्टोरी कि उसके हस्बैंड के ऑफिस में कोई CPR सिखाने आए थे। उसके हस्बैंड को लगा अब मैंने तो सीख लिया है, उसने वाइफ को यूट्यूब वीडियो से सारी चीजें एक्सप्लेन की, बट वो टेक्निकलिटी शायद वो ट्रेनर ने नहीं सिखाए थे, बिकॉज ही वाज नॉन मेडिकल ट्रेनर। और प्लस इसने भी अपनी वाइफ को वो सारी टेक्निकलिटी नहीं दिखाई, सिर्फ वीडियो दिखा दिया, बोलते ऐसे CPR करना, अगर कोई कोलैप्स हो जाए तो CPR कर देना। जबकि ये कोलैप्स हुए थे, ऑफ कोर्स चेस्ट पेन से कोलैप्स हुए थे, बट उनको हार्ट अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था। तो कई बार पेशेंट हार्ट अटैक में भी कोलैप्स होकर बेहोश हो सकते हैं। बेहोश होना और डेथ हो जाना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। बेहोश का मतलब पर्सन जिंदा है, उसका हार्ट चल रहा है, तो उसने कुछ भी चेक किए बिना चेस्ट पेन हो रहा है, बेहोश हो गया, तो तुरंत ही CPR किया, और CPR की गलत टेक्निक की वजह से पूरा का पूरा हार्ट रप्चर हो गया, रिब फ्रैक्चर हो गया। और रिब ने जितनी बार वो CPR का वो चेस्ट कंप्रेशन करती गई, उतनी बार ही हार्ट को वो रिब, बोलते हैं ना चाकू घुसड़ गए, एक बार अगर रिब टूट गई तो रिब एक नाइफ के जैसे काम कर रही है, और उसकी वजह से वो पूरा का पूरा हार्ट उसका पूरा रप्चर हो गया। 1 महीने के बाद उसके हस्बैंड की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी वाइफ तो डिप्रेशन में चली गई होगी, क्योंकि उसकी गलत टेक्निक की वजह से एक जिंदा हस्बैंड को उसने मार डाला। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम आपके क्रिएटिव से लोगों को बताएंगे। कैन आई प्रैक्टिस द CPR ऑन लाइव ह्यूमन बीइंग? एब्सोल्युटली नो। क्योंकि अगर लाइव ह्यूमन बीइंग में करने जाएंगे, हाँ, तो उसके हार्ट फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, और वो पेशेंट की उसी समय डेथ नहीं होगी, लेकिन अस्पताल में पक्का उसकी थोड़े दिनों के अंदर डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम।
व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस? प्रैक्टिस के बिना कोई परफेक्शन नहीं आता है। आप एग्जाम लिखने से पहले भी आप 2-4 बार रिविजन वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? कि मैम ने सिखाया और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गए, ऐसा होता है क्या? वर्षा मैम तो बहुत अच्छा सिखाती होंगी, लेकिन वर्षा मैम ने सिखाया और बिना प्रैक्टिस किए, बिना रिवीजन किए एग्जाम में बैठोगे तो पास हो जाओगे क्या? No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना। इसी तरह सीपीआर भी सीखने के बाद, लेकिन सीपीआर का प्रॉब्लम क्या है कि मैनीक्विन आप लोग खरीद नहीं सकते क्योंकि काफी महंगे आते हैं। तो जब तक हमारे साथ ही रह के उसकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हम कुछ भी करें तो भूल ना सके। तो यही ट्रेनिंग प्रोग्राम जब मैं करती हूँ तो मैं इंश्योर करती हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है, हर एक पार्टिसिपेंट्स को परफेक्शन में आए, तभी वो वहां क्लास से बाहर जा सकता है। ओनली प्रैक्टिस इन सीपीआर एंड मैनीक्विन नहीं, ट्रेनिंग में 3 घंटे की ट्रेनिंग है, उसमें थ्योरी भी आती है, बहुत सारे अदर पैरामीटर्स है, वो सारी चीजें समझाने के बाद एक कंप्लीट सीपीआर की ट्रेनिंग होती है। हाउ डू आई गेन द कॉन्फिडेंस कि आप गलत नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद परफेक्शन आता है, तभी आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि ओके यार सर्टिफाइड। क्यों सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि पर्सन के पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, और जब तक वो नहीं आता है, क्लास खत्म नहीं होती है, दूसरे भले चले जाए, जहाँ उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। सीपीआर ट्रेनिंग इवेंट, काफी लोग बोलते हैं अरे हमने 1 घंटे का सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, कितने पार्टिसिपेंट थे? 50, 100, 150 पार्टिसिपेंट्स थे। ऐसे ये इवेंट नहीं है, ये सीरियस, किसी की जिंदगी, किसी की मौत, किसी का फ्यूचर, ये सब चीजों का सवाल है। तो ये इवेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। वर्षा मैम Yes, ma'am. See, ma'am, नेक्स्ट स्लाइड। is it visible? हाँ, एट व्हाट एज वन कैन लर्न? 14 साल से कोई भी उम्र ऊपर का बच्चा सीख सकता है सीपीआर। मेरे घर में तो इनफैक्ट मेरे भतीजा भतीजी 5-6 साल के थे तभी भी वो लोगों ने सीखा था। मेरे घर में ऑलमोस्ट एवरीबडी, मेरे मतलब मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स है, मेरी रिलेटिव्स है, मैक्सिमम सब लोगों को सीपीआर आता है। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोगों ने सिखाया है। आई एम कंफ्यूज अबाउट अंडरगोइंग द ट्रेनिंग। ये लाइफ सेविंग स्किल है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कौन सा कंफ्यूजन? पिक्चर देखने के लिए कंफ्यूज नहीं होते हैं, कपड़े खरीदने के लिए कंफ्यूजन नहीं होता है, कौन सा मोबाइल खरीदने के लिए कंफ्यूजन नहीं होता, तो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग के लिए क्यों कंफ्यूजन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑन द अर्लीएस्ट सीखना चाहिए। मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स हम प्रे करेंगे, बट वाइजर मैन क्या बोलेगा? प्रे फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हाउ टू गेट कनेक्टेड विद अ ट्रेनर? जब मैं ट्रेनिंग कराने के बाद में मेरे पार्टिसिपेंट्स को ऐसे अकेले नहीं छोड़ देती हूँ। कोई भी एक अच्छा ट्रेनर हमेशा याद रखेगा कि अपने पार्टिसिपेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या ईमेल ग्रुप बनाए ताकि वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। इन बिटवीन कुछ एडवाइजरी नोट्स भेज सके, कुछ रिमाइंडर भेज सके ताकि उनका नॉलेज रिफ्रेश रहे। रिवीजन इज नीडेड। हाँ, रिवीजन इज नीडेड। समटाइम हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कभी मैंने मेलर डाले हैं, मेरे जो पास पार्टिसिपेंट्स है, कभी मैंने मेलर डाला है या कभी मैंने व्हाट्सएप किया, उनका आंसर लगता है कि नहीं 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 या मैम मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आ जाओ वापस, एक बार आ जाओ। जिस दिन मैं है ना ओपन रखूंगी, आओ एक बार प्रैक्टिस करो मैनीक्विन के ऊपर, क्योंकि अभी आपको सिर्फ मैनीक्विन के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए 15-20 मिनट की जरूरत है। एक बार आओ, प्रैक्टिस करके वापस चले जाओ। सो इट मेक्स टू इंश्योर दैट कि हर 2 साल में तो एटलीस्ट एक बार आके प्रैक्टिस करनी जरूरी है। नेक्स्ट वर्षा मैम, नेक्स्ट वर्षा मैम, नेक्स्ट वर्षा मैम, नेक्स्ट स्लाइड। See, ma'am. See, ma'am. Yeah, I've done, ma'am. Question rolling in my mind 6. व्हाट इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ सीपीआर? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीपीआर करने के बाद कोई भी इंसान लंबे समय तक जिंदा रहता है। मेडिकल बिल कम हो जाएंगे, अर्ली रिकवरी हो जाएगी, अर्ली डिस्चार्ज होगा, जल्दी अपने काम पे वापस शुरू हो जाएगा। और इनकरेक्ट सीपीआर का तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया है। ना इंसान मर रहा है, ना जिंदा रह रहा है, वेजिटेबल स्टेज में चला जाएगा।
उसके हॉस्पिटल के बिल ज्यादा रहेंगे। आजकल सब लोगों के पास ईएमआई रहते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कितना घर में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इट कैन इनवाइट द क्राइम। नेक्स्ट, मैंने राजू श्रीवास्तव की केस स्टडी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट, सो टेक अवे मैसेज इज लाइक इट्स अ नीड ऑफ आवर, हर किसी ने सीपीआर सीखना चाहिए। CPR training is a serious subject, cannot be online or awareness program or event. Learn CPR only from a doctor. Shortcut in learning CPR means loss of life or neuro disability. Next, ma'am. अच्छा, अब तक आपके लिए पास कोई मन में प्रश्न है? We can discuss that. क्योंकि आप लोग अगर ये पूरी चीजें समझे होंगे तभी आपको क्रिएटिव डेवलपमेंट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा टॉपिक में लूं, कौन सा क्या डेवलप करूं। तो प्लीज कम डाउन विद एनी क्वेरी यू हैव। रोशनी, आपको कुछ पूछना है? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि सामने वाले पर्सन को हार्ट अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट आया है, तो कैसे पता चलेगा? हार्ट अटैक में पर्सन है ना जिंदा रहेगा, मे बी अनकॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन उसके हार्ट बीट तो बेहोश हो गया तो? हाँ, बेहोश हो गया, फिर भी उसके हार्ट बीट फंक्शनिंग होते हैं, और उससे वो हम लोग पल्स देखते हैं। वो कैसे, वो प्रैक्टिकली जब ट्रेनिंग में आते हैं ना, हम बताते हैं कि कैसे मेजर करने का, पल्स कैसे देखने की। वो जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आते हैं तब हम बताते हैं कि बेहोश पर्सन और डेड पर्सन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। यही तो ट्रेनिंग की बात है ना, कि ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ और सिखाया जाता है सीपीआर के अलावा। जो जरूरी है अब सही तरीके से करो। आई होप रोशनी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। या मैम, मिल गया, थैंक यू। और किसी को? याद रखिए, कोई भी प्रश्न हो, बाकी के पार्टिसिपेंट्स क्या सोचेंगे ऐसा मत सोचना, बिंदास आप मुझे पूछो। इट कुड भी आपको को लगेगा अरे मेरा प्रश्न में कोई हंसेगा, तो हंसने दो, क्योंकि वो आपका प्रश्न है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी बेस के ऊपर अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको क्रिएटिव अच्छे नहीं बनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि टफ कंपटीशन हो, और हमें भी लाइक अवार्ड देने के लिए ऐसा लगे कि नहीं यार, 3 को क्यों सिलेक्ट करें, सारे लोगों को अवार्ड दे, लाइक इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पार्टिसिपेंट एक की जगह पे आप हमें इतना फोर्स कर दीजिए कि नहीं यार, हमें तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स 2-3 होने चाहिए, सेकंड 2-3 होने चाहिए। सो प्लीज मेक अस, फोर्स अस टू गिव। आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, और तभी होगा जब आप उसका कंसेप्ट अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट मैम। So as we said, like कि आपके सही messages again, हाँ, या श्वेता। Ma'am, exercise is also one of the cause of cardiac attack. Yes, no? एक्सरसाइज, हम लोग जब भी किसी का वजन बढ़ गया है या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो हम डॉक्टर लोग बोलते हैं प्लीज एक्सरसाइज करो। लेकिन एक्सरसाइज के साथ जिम में गलत तरीके से एक्सरसाइज होती है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग बॉडी के रिक्वायरमेंट से। कहीं ज्यादा बोलते हैं ना, रबर बैंड को अगर ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो पक्का टूटेगी। तो सामने वाले को अगर पता नहीं है कि कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, उसकी बॉडी कितनी एक्सेप्ट करते है, कितना डाइजेस्ट कर रही है, और साथ में आपका फूड प्रोसेस क्या है, आप कौन से, कई बार जिम में लोग काफी सारी मेडिसिन बताते हैं या प्रोटीन पाउडर्स बताते हैं। तो एक्सरसाइज करने की, डॉक्टर की एडवाइस के बिना एक्सरसाइज और फॉलोअप के बिना एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप श्वेता आपका आंसर मिला। यस मैम, बेसिकली एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो कैसे करेंगे रोज एक्सरसाइज? हर एक पर्सन टू पर्सन का एक्सरसाइज करने का लेवल अलग होता है। कोई योगा अच्छे से कर रहा है, उसकी बॉडी किसी के योगा अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, किसी की बॉडी जिम अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, किसी की बॉडी सिर्फ वॉकिंग एक्सेप्ट करेगी, किसी की बॉडी स्विमिंग एक्सेप्ट करेगी।
तो पर्सन की पर्सनालिटी और उसके आजू बाजू का पूरा पैरामीटर देखने के बाद हम डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं और उसको बताते हैं कि आप इस तरह की एक्सरसाइज करो। हाँ, एक अगर जनरल अगर एक्सरसाइज की बात करें, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर किसी के भी लिए। बट हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस या और कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। उसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज चलते हैं, चले बिना तो हमारी जिंदगी नहीं होती है ना। ओके मैम। और कोई प्रश्न? तो अब हम कंपटीशन के रूल्स वगैरह की बात करें। यस मैम। या तो क्रिएटिव आप है ना 4 प्रकार के बना सकते हो, पोस्टर, फ्लायर और ब्रोशियर। एक जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज के फॉर्म में हो सकती है। टैगलाइन, स्लोगन, प्रोवर्ब, ब्लॉग और शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट वीडियो। हर एक के रूल्स क्या है, मैं धीरे धीरे एक एक स्लाइड में मैं बताती जाऊंगी। नेक्स्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, सो तो अवार्ड, हर एक कैटेगरी में 3 अवार्ड है एंड सब लोगों को पार्टिसिपेंट मिलेगा अनलेस वो डिस्क्वालिफाइड है। नेक्स्ट। हर एक पार्टिसिपेंट्स मल्टीपल एंट्री सबमिट कर सकता है। देयर इज नो एक ही कर सकेगा, 2 कर सकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एवरी एंट्री का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक एंट्री के साथ एक फॉर्म के साथ एक ही एंट्री जाएगी, एक के साथ 2 नहीं जा सकेंगी। हम लोग आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, वो आपको अपनी क्रिएटिव जो भी क्रिएटिव बनाया है उसके साथ आपको अपलोड करना है। आप वहाँ पे फॉर्म के ऊपर जब आप गूगल फॉर्म भरने जाएँगे तो उसमें किस तरह से आपकी फाइल को नाम देना है, वो सब उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो हम आपके साथ गूगल फॉर्म जब शेयर करेगा तो उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से प्लीज़ प्लीज़ पढ़िएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम। अ, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन सॉरी 20 तारीख नहीं है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी It is 22nd ऑफ 24th, ma'am. हाँ 24th सितंबर है। 24th, 24th हाँ September. 24th संडे, नेक्स्ट संडे को आप 24 Yeah. सितंबर को लास्ट है। रात लेट नाइट 12 बजे से पहले कीजिएगा मैम, 1 मिनट प्रीवियसली। हाँ, कोई भी हिसाब से हम लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास नेक्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स एंड द अवार्ड फंक्शन की डेट ऑलरेडी फाइनलाइज कर दी प्रिंसिपल सर ने, तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। आपके पास बहुत अच्छी खासी 19 तारीख से 24 तारीख तक की गणपति की छुट्टियां है, तो यू हैव इनफ टाइम। नेक्स्ट। हाँ, ऑलरेडी मैंने क्रिएटिव हाँ ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट। हाँ, अपलोड फ्लायर, पोस्टर, ब्लॉग, वो एक्चुअली जब आप गूगल ड्राइव में जाएंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि कैसे करना है। अगर आपकी यूट्यूब आप जो वीडियो बना रहे हैं वो 100 MB से ज्यादा फाइल बड़ी है तो आप हमें वी ट्रांसफर कर सकते हैं या सेपरेट गूगल ड्राइव के पास ये कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक पेज बना के वो मेंशन कीजिएगा कि आपने कहाँ पे शेयर किया है। ओनली फॉर द वीडियोस। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम, वर्षा मैम। वर्षा मैम नेक्स्ट।
शायद अपलोड होने के लिए समय ले रहा है। See, ma'am, rules for registration is there on screen. हाँ, हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप एक बार क्रिएटिव आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या-क्या क्रिएटिव डेवलप करना चाहते हैं। वो दालमिया के हर एक स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। इट इज़ नॉट फॉर ओनली एनएसएस स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के लिए ये है। आप उसको 3 लैंग्वेज में बना सकते हैं, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में। एनी जेंडर क्रिएटिव विल बी एक्सेप्टेड। पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअल या ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। ग्रुप होगा मैक्सिमम 4 लोगों का, 1 से 4 लोगों के ग्रुप में आप काम कर सकते हैं। और हमारी ये पूरी कंपटीशन डिजिटल रहेगी जहाँ पे हम पेपर सेव करेंगे। नेक्स्ट, अभी पोस्टर और फ्लायर और ब्रोशर के क्या रूल्स है उसकी, क्योंकि ये हम लोग पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम सोशल मीडिया पे ही करने वाले हैं, प्रिंट नहीं करने वाले हैं। तो फ्लायर्स, पोस्टर जो भी है वो आप कौन सी सोशल मीडिया को ध्यान में रख के बना रहे हैं, क्योंकि उसकी साइजेस थोड़ी अलग रहती हैं। देयर इज अ यूनिवर्सल साइज आल्सो। तो आप उसके से आपको कहाँ पे डेवलप, आपको लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा ये करेगी, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग ऑडियंस है। मेरी क्रिएटिविटी लिंक्डइन में ज्यादा अच्छा उसको लाइक्स और शेयर मिलेंगे, वो ज़्यादा वहाँ पे एक्सेप्टेड होगी। तो आप सोच के समझ के अपने हिसाब से बनाइए। ब्रोशर की साइज़, अगर आप ब्रोशर बना रहे हैं तो A5 नहीं तो A4 की साइज़ में होना चाहिए। अ, जैसे मैंने कहा कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड करना है, यूनिवर्सल रहेगा तो उसके एडिशनल पॉइंट रहेंगे। आप पोस्टर और फ्लायर, ब्रोशर कैनवा और फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रॉ या पीपीटी फॉर्म में बना के हमें उसकी इमेज बना के भेज सकते हैं। फ़ोटो, ये आपका फ्लायर, पोस्टर कोई फ़ोटो कैप्शंस भी हो सकता है। आप जब भी फ्लायर, पोस्टर, ब्रोशर बना रहे हैं तो उसमें राधी फाउंडेशन का लोगो इंसर्ट करना है, कॉलेज का और एनएसएस का लोगो इंसर्ट करना है। अ, आप जब भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं गूगल ड्राइव के ऊपर गूगल फॉर्म के साथ, तो पीएनजी नहीं तो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, दूसरे कोई और फॉर्मेट होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। गूगल ड्राइव में ही सबमिट करना है, आप ईमेल वगैरह में नहीं सबमिट कर सकते। नेक्स्ट, रूल्स फॉर टैगलाइन, स्लोगन, प्रोवर्ब। टैगलाइन, स्लोगन, प्रोवर्ब 3 शब्द से मैक्सिमम 10 शब्दों का होना चाहिए। आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी भाषा में कर सकते हैं। फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट ही यूज़ करना है, ताकि अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो हम उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट यूज़ किया और हम रीड नहीं कर सकेंगे, तो आपकी अगर ये बहुत अच्छा क्रिएटिव होगी फिर भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएँगे। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आप गूगल फ़ॉर्म में करें। आप उसकी पीडीएफ फाइल बना के वर्ड फाइल में हमें शेयर मत कीजिए, पीडीएफ फाइल ही बनानी है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होनी चाहिए और गूगल ड्राइव में ही सबमिट करना है। अगर आपने ये टैगलाइन कहीं से उसकी आइडिया आपने कहीं से और जगह टैगलाइन, प्रोवर्ब या स्लोगन कहीं और से लिया है, तो ये कॉपीराइट इश्यू नहीं होना चाहिए और वो आपने कुछ किया है तो हमें मेंशन करना चाहिए कि हमने यहाँ से लेके रेफरेंस यहाँ से लिया है। आप कॉपी तो किसी भी चीज़ों की नहीं कर सकते हैं और एआई और चैट जीटीपी का कोई भी उठाया चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास फ़िल्टर है जो बताएगा कि एआई और चैट जीटीपी के हिसाब से यूज़ किया है। तो automatically that will get disqualified. Next, blog और शॉर्ट स्टोरी अगेन, ब्लॉग और आर्टिकल मैक्सिमम 200 शब्द में होने चाहिए। इट कुड बी कोई एजुकेशनल स्टोरी हो सकती है या कोई पर्सनल स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज ओके। मराठी, हिंदी, इंग्लिश में आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज अगेन 12 की होगी। गूगल फॉन्ट ही होगा। वर्ड फाइल में ये करके फिर आपको हमें पीडीएफ में शेयर करना है। कॉपीराइट इश्यू नहीं होने चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ों का रेफरेंस देता है तो वो नीचे मेंशन करना चाहिए। ए और चैट जीटीपी का क्रिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट फ़िल्म हो सकती है, एनिमेशन हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म हो सकती है, मोबाइल फ़िल्म हो सकती है, एड फ़िल्म हो सकती है, रील हो सकती है, मोनो डायलॉग हो सकता है, स्ट्रीट प्ले हो सकता है। अ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी में आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी, मराठी में बना रहे हैं तो उसको सबटाइटल नीचे इंग्लिश में देना ज़रूरी है।
टोटल रन टाइम फिल्म का रहेगा 3 मिनट, और अगर आप स्ट्रीक प्ले कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम 6 मिनट रहेगा। नेक्स्ट, कॉपीराइट इश्यू कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं, कहीं से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको आपको अपनी क्रिएटिविटी में डेवलप करना है। अगर आप कोई फोटो वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो फोटो में किसी का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई फोटो कॉपीराइट वाला यूज कर रहे हैं तो प्लीज टेक अ परमिशन फॉर दैट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी आपको कोई क्वेरी है क्या? मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं। अब इसमें कोई आपको कोई प्रश्न है, कुछ है तो प्लीज शेयर विथ मी। फ्रेंड्स, ये आपकी क्रिएटिविटी की बात है, तो मन में एक छोटा से छोटा भी प्रश्न है तो प्लीज फ्रीली पूछिए, बिल्कुल फ्रीली पूछिए। मैम, हाँ, या प्लीज। कैन यू सेंड दिस पीपीटी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप? ये पूरा इसका रिकॉर्डिंग मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में शेयर करूंगी। ओके मैम। पीपीटी भी चाहिए तो मैं थोड़ा उसको मॉडिफाई करके आपके साथ पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी भी पीडीएफ फाइल ग्रुप में शेयर होने वाली है आप लोगों के साथ। और एनीथिंग एल्स? आपको सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? Yes, ma'am. यस मैम। सब लोगों का सिर्फ श्वेता का यस आया है। मुझे सबके हैंड रेस चाहिए। जिन जिन लोगों को समझ में आया उनके सबके मुझे हैंड रेस चाहिए। वी हैव 12 पार्टिसिपेंट्स, सारे 12 लोगों का मुझे हैंड रेज होना चाहिए। अजीत, दिलीप, रविंद्र, रोशनी, आपको कुछ क्वेरी है? नो मैम। तो आपने वापस एक बार हैंड डाउन करके हैंड रेज करना पड़ेगा। आपने पहले हैंड रेज किया था तो वो अभी हैंड रेज वापस आप क्लिक करने गई तो निकल गया है, मेरे को नहीं दिख रहा है। और रविंद्र, आपको क्या क्वेरी है? रविंद्र, आपका हैंड रेज नहीं हुआ है। रविंद्र, आर यू देयर और गॉट डिस्कनेक्टेड? अच्छा फ्रेंड्स, आपकी वजह से आप जो भी अवेयरनेस के क्रिएटिव डेवलप करेंगे, जो मैंने अलग अलग ये चीजें बताई है, तो उसका एक ही ये होने वाला है कि आप आपके और भी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करके उनको एनरोल कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और उनको ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए ताकि वो व्हाट्सएप ग्रुप ये कर सके। आपकी क्लासमेट्स है, आपकी फ्रेंड्स है, बट दालमिया कॉलेज के होने जरूरी है। जो बाकी के लोग नहीं ज्वाइन हो सके कोई भी और रीजन से, तो प्लीज उनके साथ भी ये शेयर कीजिएगा। वीडियो तो मैं शेयर करूंगी ही कल सुबह में। पीडीएफ फाइल अब शेयर कर देती हूँ कल सुबह में। एवरीथिंग मैं कल सुबह में शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट बैटरी खत्म हो गई और लाइट कब आएगी पता नहीं। सो एनी क्वेरी, कुछ या somebody was saying, please come. Ma'am, can I ask something? Please, please. Ma'am, for example, I'm going for digital poster. So Mhm. what exactly I need to show in that digital poster? For example, मुझे poster बनाना है तो मुझे उसमें क्या दिखाना है exactly, मैम? थोड़ा गाइड कीजिए। अगर आपको डिजिटल पोस्टर बना रहे हो या फिल्म बना रहे हो या स्टोरी लिख रहे हो,
तो मैंने जो बिफोर द कंपटीशन के रूल बताए, उससे पहले मैंने जितनी भी चीजें कंटेंट बताया है, उसमें से कोई आप एक कंटेंट पिकअप कर सकते हो। जैसे कि सिंपल कंटेंट के ये डेवलप कर सकते हो कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का डिफरेंस क्या है, या तो हाँ कॉफिंग या स्मेलिंग से कोई डेड पर्सन जिंदा नहीं होता है, 4 मिनट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक आप मैंने आज जितनी भी बातें की है, उसमें से कोई एक या दो टॉपिक को कनेक्ट करके आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई मोनो डायलॉग कर रहा है तो सिर्फ बातें कर रहा है कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वो अपनी इमोशनल स्टोरी कुछ बताओ कि कहीं सुनी हुई है, कुछ हुआ है, तो वो कुछ शेयर कर सकते हैं। या फिर दो लोगों की डिस्कशन आप लोग कुछ ये बना सकते हैं, उसका 3 मिनट का वीडियो, या तो चार फ्रेंड्स मिलके कुछ स्ट्रीट प्ले करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इट इज ऑल जो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि बिफोर दिस रूल्स एंड रेगुलेशन कंपटीशन क्या है, उसमें क्या डेवलप होने से पहले का जितना भी हमारा डिस्कशन था। और हम ये क्यों कर रहे हैं वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने बहुत लोगों से बातें की और उन लोगों को लगता है हार्ट अटैक आया ना तो खांसने को बोल दो, या सीपीआर सीखना है तो ऑनलाइन सीख लेंगे, बहुत सारे यूट्यूब अवेलेबल है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये 4 मिनट का इतना क्रूशियल समय है, और उस समय में अगर पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी, सही जगह पे अगर आपने हाथ नहीं रखा है, सही जगह पे आपकी पोजीशन नहीं है, सही टेक्निक नहीं है, तो पर्सन नहीं जिंदा बचेगा। और अगर जिंदा बच भी गए तो गलत टेक्निक की वजह से अगर वो लंबे समय तक कोमा में चला जाएगा, या न्यूरो डिसेबिलिटी हो जाएगा, या लंग डैमेज हो जाएंगे, या हार्ट डैमेज हो जाएगा, तो फायदा क्या है। हमें लाइफ बचानी है, उसकी तकलीफें बढ़ानी नहीं है, उसकी और उसकी फैमिली की तकलीफें बढ़ानी नहीं है। correct ma'am. Thank you ma'am, thank you. जैसे कि मैंने Yeah, हाँ, yeah, students, if you have any query you can ask your question regarding the digital creatives. कम ऑन, जैसे मैंने आज पूछा कि मैम पोस्टर कैसे बनाना है, तुम लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चंस है सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मैम, या जो पीपीटी हम बनाएंगे पोस्टर्स के लिए, तो वो हम्म, कितने स्लाइड्स का होना चाहिए, या फिर ओनली वन स्लाइड? ओनली वन स्लाइड। आप पीपीटी का फॉर्मेट यूज करके एक इमेज बना सकते हैं। इट्स एन इमेज, वेदर इमेज पोस्टर हो सकती है, फ्लायर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है। ओके। आप अगर गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको डिफरेंशिएट समझ में आएगा, फ्लायर किसको बोलते हैं, पोस्टर किसको बोलते हैं, और ब्रोशर किसको बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ब्लॉग और शॉर्ट स्टोरी में भी एक डिफरेंस है। द ब्लॉग इज एन प्योरली इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, एंड स्टोरी इज इमोशनल स्टोरी, किसी एक पर्सन के अराउंड ये होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको 3 स्टोरी बताई है अब तक के हमारे कन्वर्सेशन। मैंने एक राजू श्रीवास्तव की स्टोरी बताई, एक नवी मुंबई के पेशेंट की स्टोरी बताई, एक मैंने जो रोहन करके जो मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट था उसकी स्टोरी बताई। तो ऐसे कुछ भी अगर आपने स्टोरी सुनी है, आप अपनी इमेजिनरी स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे लोग मोटिवेट हो कि नहीं, हमें गलत नहीं सीखना है, शॉर्टकट नहीं करना है, हमें एक्चुअल ट्रेनिंग करने के लिए उनको मोटिवेट होना चाहिए। एटलीस्ट उनकी गलत फहमियां तो दूर हो जाए। यस मैम, या एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी छोटे ओके से मैम। छोटी बात आप कुछ भी पूछ सकते हो, फील फ्री। हाँ, या हर्ष, आपको क्या पूछना था? नो मैम, नो मैम। या someone has raised the hand. एक्चुअली सबके हैंड रेज है, तो प्लीज अच्छा, ओके। सबके अनरे ये कर दीजिए, हैंड अनरेज कर दीजिए, तो फिर अगर कोई हैंड वापस उठाता है तो समझ में आएगा कि हैंड रेज्ड है। So ma'am, let's wind up the session here. यस। Yeah. Now, friends, it's time to एक मिनट, express. Yeah. एक मिनट। Yes, ma'am. Before we wind up the session,
truly appreciate वर्षा मैम, वो मेरे से कंटिन्यूस कांटेक्ट में हर छोटी छोटी बातों के लिए वो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रही है, ताकि ये हम कंपटीशन दालमिया कॉलेज ने कुछ ऐसा कुछ डेवलप किया एनएसएस विंग के साथ मिलके, और सारे स्टूडेंटों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसे कोई कंपटीशन हम लोग कोई भी कर रहा है, कोई कॉलेज स्टूडेंट के साथ। अभी तक इस तरह की कंपटीशन हुई नहीं है, और दालमिया कॉलेज की पहली कंपटीशन है। मतलब हम लोग भी राधी फाउंडेशन या इस तरह की कोई कंपटीशन आज तक किसी ने की नहीं है, तो आपके क्रिएटिव फर्स्ट होंगे। अगर आप गूगल सर्च वगैरह भी करोगे तो जो हमने कंटेंट शेयर किया है वो कंटेंट आपको गूगल और एआई और कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारा रिसर्च है और वो रिसर्च का आंसर्स थे वो। तो इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल ऑन द गूगल के हम कहीं पे, आप अगर गूगल में भी टाइप करेंगे तो जो मैं चीजें बात कर रही हूँ उसमें से 90% चीजें आपको नहीं मिलेगी। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप जो आज पार्टिसिपेंट्स कोई भी रीजन से अटेंड नहीं कर पाए, या आपके और कोई फ्रेंड्स है, प्लीज एनरोल देम मैक्सिमम पीपल, ताकि हम लोगों की जिंदगियां बचाए, और एक स्पेसिफिकली हेल्थ केयर का बर्डन रिड्यूस करने के लिए किसी को जिंदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेवियर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सेवियर 100% होना चाहिए। आधा इन बिटवीन कोमा में या न्यूरो डिसेबिलिटी में या कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए, वो भी एक जिम्मेदारी है सेवियर की। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव अप्रोच। और भले ही आज हमारे पास 34 पार्टिसिपेंट्स है, मे बी आप लोगों की वजह से हम थोड़े और पार्टिसिपेंट्स ऐड कर पाएंगे, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट्स ने लेट भी किया, अल्टीमेटली क्रिएटिव सबमिट करना इज अ लास्ट के 24 तारीख से पहले क्रिएटिव सबमिट करना चाहिए। अगर कोई लेट भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करता है तो चलेगा, उसको रूल समझ में आना चाहिए, उसने वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। या श्वेता प्लीज। Sorry, ma'am, for asking late. Ma'am, No, will no. you provide the logo of this foundation? Yes, Varsha ma'am will provide the logo of our foundation. Ma'am, you want that students should insert your logo in that creatives? अगर पहले से अगर वो लोगो नहीं इंसर्ट कर रहे कॉलेज का और एनएसएस का और राधी का, तो प्रोबेबली उनको क्रिएटिव को डिजाइन करने में ये हो जाएगा। Okay, we'll talk about this, ma'am. We'll discuss it. ठीक है? Sure. Yeah. And later on, we'll inform them in the group itself. Okay. Done. Done. We'll discuss and let them inform. We'll inform you. Yeah. और किसी को कुछ पूछना है? And it is not late, हाँ, हम लोग जब तक मीटिंग वाइंड अप ना करें उसके बाद भी अगर पूछना है तो वर्षा मैम इज देयर इन द ग्रुप, आई एम आल्सो देयर इन द ग्रुप, बट मेरे थोड़े रिप्लाई लेट आएंगे, बट आएंगे जरूर। So this is not the end of the meeting, this is the beginning of our meeting. Yeah, Varsha ma'am, Yeah. please. Yeah, ma'am. Now it's time to express gratitude. On behalf of NSS Unit B26 of our college, I take this opportunity to give vote of thanks. I extend my gratitude to our guest speaker, Dr. Rita ma'am, for gracing the session. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your great knowledge on CPR training. Today, we had an opportunity to hear you, and ma'am, you have explained everything very nicely and in detail. And I'm sure that your guidance will definitely help our students to develop their creatives. And finally, thank you so much to all my dear students for your active participation and patient listening. Thank you once again, and have a happy weekend. Thank you. Thank you, Thank you, everybody. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yep. Thank you. Have a happy weekend. Yep. And best of luck for your best creative. Please come out with the best of the ideas. Yes, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Yeah, Roshni. Should we end the meeting? Yes, ma'am.